السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میں کچھ بھی اچھا کر لوں لیکن نہ جانے کیوں میری ساس کو وہ ٹھیک نہیں لگتا تھا، اور جب تک وہ میرے شوہر کو میری اور میرے بچوں کی باتیں بڑھا چڑھا کر نہ بتا دیتی، ان کو سکون نہ ملتا۔ شادی کے وقت عورت کو سیکھ دی جاتی ہے کہ ساس کو ماں سمجھو، پھر ساس کو کوئی کیوں نہیں کہتا کہ بہو کو بھی بیٹی سمجھو۔ اور جب سے میری شادی اس گھر میں ہوئی تھی، میری ساس ایک بات کو 10 بار دہراتی، بہو ہانڈی چولہے پر دھر دی یا نہیں؟ میرا ناصر تھکا ہارا دفتر سے آنے والا ہوگا۔ آسما کی ساس روز یاد دلانا نہیں بھولتی تھی، حالانکہ وہ جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی یہ کام باقاعدگی سے سر انجام دے رہی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بھولی ہو، مگر پتہ نہیں کیوں یہاں کے لوگوں کو اس کی کارکردگی پر شک ہی رہتا تھا، اور وہ قدم قدم پر یاد دلانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ شہباز بیٹا، آسما نے اپنے بڑے بیٹے کو پکارا۔ ہاں ہاں، اب گلا پھاڑ کر دو آوازیں، پتہ ہے نا باپ کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اب گلی محلے میں آوارہ پھرنے والے اپنے بچے کو اکٹھا کرو۔ پتہ نہیں کیسی ماں ہو، احساس ہی نہیں اولاد کا، اپنے آرام کی خاطر بچوں کو گلی میں نکال دیتی ہو۔ وہ اپنی ساس کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کے بچے گلی میں نہیں بلکہ کمرے میں بیٹھے اسکول کا کام مکمل کر رہے ہیں، مگر کیا فائدہ، پھر کوئی دوسرا موضوع لے کر بیٹھ جاتی۔ اصل میں اس کی ساس کو بولنے کا خبط تھا، کسی نہ کسی بات کو لے کر بولتی ہی رہتی۔ ان کی اس عادت کی وجہ سے محلے کی خواتین بھی ان کے گھر آنے سے گھبراتی تھی، اور آسما کے چاروں بچے بھی دادی کے سامنے آنے سے بچنے کے لیے اکثر اپنے کمرے میں ہی رہا کرتے۔ ماں کی آواز سن کر شہباز کمرے سے نکلا تو اس نے ننھی مہم کو اسے تھما دیا۔ ضد کر رہی ہے، بہلاؤ ذرا اسے۔ وہ بچوں کے ساتھ بہت نرم لہجے میں بات کیا کرتی تھی، اس پر بھی اس کی ساس نند یہی کہتی تھی، دیکھنا ایک دن سر پکڑ کر روئے گی۔ بچے ایسے انداز کو کچھ نہیں سمجھتے، سب کے سب ہاتھ سے نکل جائیں گے، مگر اس نے اپنا انداز نہیں بدلا۔ اب تو بڑا شہباز 12 سال کا ہو رہا تھا، اس سے چھوٹی ہادیہ، پھر اکبر اور سب سے چھوٹی ماہم۔ فی الحال تو بچے بہت مؤدب تھے، اور دادی کہتی، ماں نے میرے خلاف بھڑکا دیا ہے، تبھی تو میرے قریب نہیں بھٹکتے، اسی سے چمٹے رہتے ہیں۔ اور وہ بھلا ان کی دادی کو کیسے سمجھاتی کہ بچے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، جو انہیں اپنے باپ اور دادی دونوں سے ہی نہیں مل رہا۔ آج سے 14 سال پہلے جب وہ اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی تو گھر بھی معقول اور شوہر بھی معقول تھا۔ ناصر کو آسما کے ابا نے شرافت، ایمانداری اور محنت کی وجہ سے قبول کیا۔ کچھ اس کی شخصیت بھی اچھی تھی۔ اسے یاد تھا اس کے ابا ہمیشہ کہا کرتے تھے، اچھی اور خوشگوار زندگی کے لیے مرد کا جسمانی طور پر صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ ہمیشہ چڑچڑا اور بیمار ہی رہتا ہے۔ یوں یہ خود بھی بہت حسین تھی، مگر ناصر اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہ تھا۔ شادی ہو کر آئی تو آسما کے بھی باقی تمام لڑکیوں کی طرح بہت سے خواب تھے۔ ہمیشہ ناصر کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے تعریف اور محبت ڈھونڈتی رہ جاتی جو اسے نہ ملتی۔ ناصر کو پرواہ تھی تو صرف اپنی ذات، اپنی شخصیت اور اپنی خوبصورتی کی۔ آسما اس کی زندگی میں ہے یا نہیں اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کی ماں ہمیشہ سے ہی بد مزاج، بد زبان اور چڑچڑی تھی۔ اس گھر میں آتے ہی آسما کو اندازہ ہوا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت تو ناصر اور اس کی ماں کی تھی۔ ناصر اپنی صحت کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ حساس تھا۔ اس کی تنخواہ کا کافی حصہ اس کے لیے مرغن غذاؤں کی نذر ہو جاتا۔ بادام، مربع جات، یخنی، انڈے، پھل، باقاعدگی سے سب آتا، مگر کھانے کی اجازت صرف ناصر اور اس کی ماں کو ہوتی۔ اس کی ساس کی ایک عجیب عادت تھی، ہر چیز گنتی کر کے رکھتی، وقت بے وقت آسما سے پوچھ کر اسے شرمندہ کر دیتی، کسی اور نے کچھ کھایا تو نہیں؟ وہ تو اپنی آنکھوں میں آئے خاموش آنسو ادھر ادھر دیکھ کر چھپاتی، جو کبھی وہ تھوڑا بہت کھا بھی لیتی تھی۔ شوہر اور ساس کے اس قدر حساب کتاب کے بعد جھجک کر وہ بھی چھوڑ دیا۔ کچھ وقت گزرا تو ساس کو شوگر کے مرض نے آن گھیرا۔ ان کی غذا اب خشک میوہ جات اور دودھ تک محدود ہو گئی۔
नासिर फल वगैरह भी लाता था, मगर हिसाब किताब से सिर्फ अपने लिए ही लेकर आता। बात सिर्फ खाने पीने तक की नहीं थी, बल्कि वो देखती थी कि नासिर को उसकी परवाह ही नहीं। वो अपनी जात में गुम रहने वाला और अपनी जात की परवाह करने वाला इंसान था। अपने शोहर के ऐसे मिजाज की वजह से आसमा ने अपने तमाम हसीन ख्वाब आंखों से नोच कर फेंक दिए और इस घर के रोजो शब का हिस्सा बनती चली गई। रात के वक्त ही नासिर के लिए बादाम भिगो देती, जब वो सुबह उठते ही खाली पेट दूध के गिलास के साथ खाता, फिर एक कटोरा दही, घंटे बाद नाश्ते में अंडा पराठा, शाम वापसी पर फ्रूट चाट पहले से तैयार मिलती, फिर रात का खाना, सोने से पहले दूध का एक गर्म गिलास मौसम के हिसाब से मौजूद मुरब्बे के साथ। ये थी नासिर की सादा सी ग़िज़ा। बेचारी आसमा शादी के बाद जैसे खुद को भूलती ही जा रही थी। सारा दिन घर के काम काज के साथ नासिर के खाने पीने का ख्याल और उसकी माँ का अलग खाना पीना। हर छुट्टी के दिन जब उसकी चारों शादीशुदा नंदे आती तो उनके लिए अलग दावत का एहतमाम करना। शादी को साल भी ना गुजरा था और वो खुद को भूल चुकी थी। बाज़ औक़ात दिल में गिला जरूर आता कि काश उसके अब्बा उस आदमी की शख्सियत की थोड़ी तो छानबीन करवाते कि ये कैसा खुद गर्ज आदमी है। अभी इन हालात से और शोहर की बदमिजाज शख्सियत से गुजारा करना सीख रही थी कि खुद उम्मीद से हो गई। उस दिन वो बहुत खुश थी। उसे लगा था उसे तमाम जहानों की दौलत मिल गई है। उसे लगा था कि नासिर अब उसका ख्याल करेगा, उसके लिए ना सही पर उसके आने वाले बच्चे की खुशी में वो उससे मोहब्बत का मुजाहिरा करेगा। मगर वक्त ने साबित कर दिया कि तमाम उसकी जाती खुशफहमियां थी। इस खुशी की खबर को सुनकर भी नासिर का रवैया ना बदला और ना ही उसकी माँ का बदमिजाज। नासिर की खुदगर्जी उसकी माँ की बेहिसी को देखते देखते जिंदगी की गाड़ी चलती रही। जब तक आसमा के अब्बा हयात रहे, बेटी की बहुत सी जरूरतें मेके से पूरी हो जाती। फिर अब्बा ना रहे तो दोनों भाई जहां तक मुमकिन होता बहन की मदद कर देते, मगर उनके अपने भी अखराजात थे। वो अब्बा की जिंदगी वाली बातें अब बाकी नहीं रही थी। आसमा को लगता था अब नासिर को एक बाप का भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, मगर नासिर अभी भी वैसा ही खुदगर्ज था जो घर आते ही सिर्फ अपने खाने पीने की फिक्र करता। बच्चे अगर कभी कुछ खाने के लिए हाथ बढ़ाते तो उनके मुंह पर थप्पड़ मार के उन्हें कमरे से बाहर निकाल देता। छोटा बेटा तो अक्सर ही जिद करने लगता, मगर वो बच्चों को समझा देती कि उनका बाप कमाता है, मेहनत करता है और कमजोरी की वजह से उसको खिलाना बहुत जरूरी है। बच्चों की जिद के सामने दादी ने प्यार से समझाने की बजाय हमेशा ही डांटती, कितनी मोहब्बत करता है और कभी जो बच्चों ने उसे सुख से कुछ खाने दिया हो, ये सब तुम्हारी गलत तरबियत है। बात जो भी होती आसमा पर ही खत्म होती। नासिर छोटी छोटी बात पर आसमा से गुस्सा करता और आसमा पे हाथ भी उठा दिया करता था, मगर अब बच्चे बड़े हो रहे थे। नासिर का ये रवैया उन्हें जहनी तनाव में मुब्तला कर रहा था। शहबाज 13 साल का हो चुका था। बाप की हर वक्त की गाली गलोच, बेवजह मारपीट और माँ पर चिल्लाने की आदत से हर वक्त सहमा सहमा सा रहता था। उस शाम भी नासिर दफ्तर से वापस जल्दी आ गया। आसमा अभी शाम की सब्जी बना रही थी कि उसने आवाज दे डाली, जल्दी आ जाओ, कहाँ मर गई हो। वो जल्दी से फ्रूट चाट उठाकर उसके सामने आ गई। कहाँ दफा हो गई थी, सारा दिन का थका हारा घर पहुंचा हूँ, पता नहीं कौन कौन से काम निकाल कर बैठती रहती हो, सुनती ही नहीं। वो मैं शाम का खाना तैयार कर रही थी। हाँ हाँ, बड़ा मुश्किल काम है ना। नासिर का रवैया उसके अंदर बेजारी उतार देता था। आज तो वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह से सर में दर्द और सुस्ती सता रही थी और ये तकलीफ टालते हुए भी काम में लगी हुई थी। अब शोहर का जलता हुआ एक एक लफ्ज उसकी थकन को मजीद बढ़ा रहा था। सर दबाओ, मेरा दर्द से फट रहा है। वो चुपचाप अपनी जगह से उठी और नासिर का सर दबाने लगी। पूरे दिन का काम, थकन और शोहर की बदमिजाजी ने रात उसे बुखार में मुब्तला कर दिया। बेचैनी से करवट पे करवट बदलती रही। मुंह से हाय भी ना निकाली कि शोहर अगर नींद से जाग जाता तो एक अलग कयामत बर्पा हो जाती। सुबह नाश्ते वगैरह से फारिग होते ही शहबाज को साथ वालों के घर भेजा। फवाद भाई का घर था।
कई सालों से पड़ोसी थे। उनकी बीवी भी बड़ी नेक औरत थी, अक्सर मिलने आ जाया करती थी, उसके हालात को बहुत अच्छी तरह समझती थी। फवाद भाई एक बड़े क्लिनिक पर काम करते थे, दवाओं की अच्छी खासी सूझबूझ थी। घर में भी छोटी मोटी बीमारियों की दवा रखते थे, मोहल्ले वालों में डॉक्टर ही कहलाते थे। शहबाज को कैफियत बताकर फवाद भाई के घर भेजा और दवा मंगवा ली। उन्होंने कहला भेजा था, दवा दूध के साथ लेनी है, आराम भी करना है। दोनों ही बातें नामुमकिन थी। बहरहाल दवा ली और फिर घर के कामों में लग गई। दोपहर तक बुखार तेज हो गया, नाचार बिस्तर पर लेटना पड़ा। बच्चे स्कूल से आने वाले थे, उनकी दादी को जरा देर बाद खाना चाहिए था। फिर नासिर के कई काम थे। बच्चे घर आए, माँ की हालत देखी तो परेशान हो गए। घर में खाने को भी कुछ नहीं था, भूख से बुरी हालत थी। तंदूर से रोटी और सालन ले आए। तेज मसालों वाली दाल पहले नवाले के साथ ही मुंह में आग लगा रही थी। वही हाल दादी का भी था और मुसलसल बुड़बुड़ाई जा रही थी। कुछ देर गुजरी थी कि नासिर भी घर आ गए। अजब अब तरीका आलम दिखाई दिया। रात तेज आंधी के बायस घर की हर शय पर गर्दो गुबार की एक हल्की सी तह थी जो बहुत नागवार गुजर रही थी। माँ को सलाम करके कमरे में आए। बीवी बिस्तर पर बेसूध पड़ी थी। तीनों बच्चे परेशान सूरते लिए माँ के पास बैठे थे। सबसे छोटा बेटा भी रो रो कर हलकान हो रहा था। अजीब मुसीबत है, बंदा सारे दिन का थका हारा घर आता है और घर में नई मुसीबत का सामना। माँ की तरह वो भी बुड़बुड़ाने लगा। छोटी बेटी ने बाप के इस अंदाज को बगौर देखा, खुद सोचा और फिर माँ का सर दबाने लगी। शहबाज जो बहुत परेशान बैठा था, उसे लग रहा था उसका बाप ही आकर माँ की हालत को संभालेगा। अपने बाप की नागवारी को महसूस करके फौरन भागा और साथ वालों के घर पहुंचा। वो तो किस्मत अच्छी थी कि फवाद भाई घर पर ही मिल गए और वो और उनकी बीवी दोनों ही चले आए। आसमा को दवा दी, साथ ही आराम की तलकीन की। वो बिस्तर से उतरने की भी हिम्मत नहीं पाती थी। आज नासिर को वापसी पर ना फ्रूट चाट मिली, ना मुरब्बों के साथ दूध, ना उनके लिए सुबह के बादाम भिगोए गए। रात खाने में एक बार फिर बाजार के मिर्च मसाले, उनका मूड तो बिल्कुल ही खराब हो गया। सुबह तक आसमा का बुखार उतर गया, मगर कमजोरी बहुत ज्यादा थी। मजबूरी भी थी कि घर देखना था। जब दादी और बाप बरामदे में बैठे नाश्ता कर रहे थे, बच्चे माँ के पास बावर्ची खाने में बैठे थे और शहबाज बड़े लाड से माँ को कह रहा था, अम्मी आप एक दिन बीमार क्या हुई, यूं लगता था घर में कोई रौनक ही नहीं। ये घर तो आपके बगैर बिल्कुल बेआबाद है। हाँ हाँ करो ऐसी बातें, अगर मेरे बच्चा कमा कर ना लाए तो देखो कैसे घर चलाती है तुम्हारी सुघड़ और सियानी माँ। अरे ये मेरे बेटे के दम से आबाद है। दादी ने पोते के लाड को समझने की बजाय उल्टा ही ले लिया और बकायदा बच्चे से लड़ने पर उतर आई। उधर से किसी ने जवाब ना दिया तो खुद ही घंटों बुड़बुड़ाती रही। नासिर ने भी बच्चे की बात को समझने की बजाय उसे उल्टा ही लिया। बुरे मूड के साथ ही घर से रुखसत हुआ। बच्चों ने स्कूल से छुट्टी कर ली। काम में सारा दिन माँ का हाथ बटाते रहे और इस पर कूटते रहे कि उनकी माँ की इस हालत में जब उसे थोड़ी सी मोहब्बत की और सुकून की जरूरत है, कोई एक वक्त उसे बिठाकर खिलाने वाला नहीं। पता नहीं कब मैं बड़ा होऊंगा, कब अपनी अम्मी के लिए कुछ कर सकूंगा। मैं उन्हें अब बहुत आराम देना चाहता हूँ। ये नन्हे शहबाज की ख्वाहिशात थी जो खुद भी अभी बच्चा था। हाँ अम्मी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो सालन मैं ही बनाया करूंगी। 10 साल बेटी की बात पर वो फिदा ही तो हो गई थी। ये बच्चे अपनी माँ को एक आरामदेह जिंदगी देना चाहते थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो एक मामूल की सुबह थी जब नासिर बिकते झिकते घर से निकला। कुछ देर बाद ही उसके एक्सीडेंट की इत्तला आई। अस्पताल पहुंचे तो नासिर को खासी चोटें आईं, लेकिन ये शुक्र था कि जिंदगी खतरे से बाहर थी। उनकी एक टांग बुरी तरह चूर चूर हुई थी। डॉक्टर्स कह रहे थे टांग काटनी पड़ेगी। कमर के कुछ मोहरे भी हिल गए थे। मरियम के भाइयों ने इस मौका पर माली और इखलाकी दोनों तरह की मदद की और बड़े भाई उसे बहुत कुछ समझाते भी रहे। वो देख रहे थे नासिर की बिरादरी से कोई न कोई मिलने तो आ रहा था, मगर किसी को भी नासिर की परवाह ना थी। चारों बहनें, शौहर, बच्चे बार बार आ तो रहे थे, मगर इतना भी ना हुआ था कि एक सालन ही बनाकर ले आते। ऐसे नाजुक मौके पर भी नासिर की किसी ने परवाह ना की थी।
किसी ने आकर एक वक्त भी खाने पीने या पैसों का भी ना पूछा था। शायद वो सब समझ चुके थे कि अब नासिर कर्ज लौटाने की हालत में नहीं रहा, बाकी जिंदगी बिस्तर पर ही गुजारेगा। भाई ने आसमा को समझाया था, आने वालों पर ज्यादा खर्च मत करो, रकम को बचा कर रखो और खुद को जरा हिम्मत हौसला दो। हम तुम्हारे साथ हैं, मगर अपने घर को बचाना अब तुम्हें ही पड़ेगा। तुम्हारे कमजोर बाजू ही अब इस घर को सहारा देंगे। अच्छे भले चलते फिरते आदमी का माजूर होकर बिस्तर पर आ जाना कम धचका नहीं होता, और आदमी भी वो जिसे हर वक्त अपनी सेहत सलामती की फिक्र सताती रहे। अस्पताल में सब्र आजमा वक्त गुजार कर आखिर वो बेसाखियों के सहारे घर लौटा था। अम्मा ने बैन डाले, बहनों ने आंसू बहाए, मोहल्ले वाले अफसोस करने के लिए जमा हुए। खामोश और बाहौसला थी आसमा, वही अहमक और बौड़ औरत जो हर कदम पर उसे संभाल रही थी, हौसला बढ़ा रही थी। नासिर को सुकून चाहिए था और घर में सुकून ना था। उनकी चारों बहनें रोजाना अपने 8 बच्चों समेत इधर आ जाती। बच्चे सारे घर में उधम मचाते फिरते। उन्हें अब महसूस हो रहा था कि अम्मा बोलती भी तो बहुत हैं और खामखा बोलती हैं, और जब वो उन्हें देखकर सर पर हाथ रखकर बैंड डालती तो नासिर का जी चाहता वो मर ही जाए। आसमा बहुत मसरूफ हो गई थी। वो चाहता था कि वो उसके पास आकर बैठे, उसे तसल्ली भरे अल्फाज कहे, मगर ये भी देख रहा था कि अकेली जान के साथ 100 बखेड़े थे। फिर रोजाना की दाल रोटी, बाजार में मिलने वाली सस्ती तरीन सब्जियों को खाकर उनकी बहनों के बच्चे तो बेजार होने लगे थे। पहले जब वो मामू के घर आते थे, नानी से फरमाइश करते और नानी उनकी फरमाइश के मुताबिक खाना तैयार करवा दिया करती थी, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए वो भी बोर हो गए और वापसी की जिद करने लगे। बहनों को वापस जाना पड़ा और उनके जाने से घर में कुछ सुकून हुआ। मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। सारे दिन के काम निपटा कर आसमा अब फारिग होकर उसके पास आई थी। बात करते हुए वो सोच में भी डूबी हुई थी, मगर उसके लहजे में डर और झिझक नहीं थी। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं सोच रही थी, ऊपर 2 कमरे तो हैं, हम उधर शिफ्ट हो जाते हैं, नीचे वाला हिस्सा किराए पर दे देते हैं। ऊपर के कमरे? उन्होंने सोचा और बोले, सिर्फ 2 कमरे हैं, कुछ रकम मिलनी है, हम बस एक किचन और बरामदा बनवा लेंगे। और यूं जिंदगी में पहली बार आसमा और नासिर ने कोई फैसला मिलके किया। आज से पहले सारे फैसले अम्मा और नासिर ही किया करते थे। सुबह जब अम्मा को पता चला, बहुत रोई पीटी चिल्लाई। उन्हें सख्त इख्तलाफ था, बकौल उनके बस ऊपर ही की होकर रह जाएंगी। बार बार सीढ़ियां चढ़ना उतरना उनके बस की बात नहीं। फिर वो छोटा सा 1.5 चारपाई का कमरा उनके हिस्से में आएगा। बड़ा कमरा तो नासिर और उनकी बीवी बच्चों का हो जाएगा। मेरी बेटियां आएंगी तो कहाँ उठे बैठेंगी, उनका मैका खत्म हो जाएगा। आसमा ने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। नासिर ने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। शाम तक बच्चे और आसमा बहुत सा सामान ऊपर वाले हिस्से में मुंतकिल कर चुके थे। बड़े कमरे के दरमियान वाले हिस्से में पर्दा डाल दिया गया। एक हिस्सा इन मियाँ बीवी के लिए, दूसरा स्टोर भी था और बच्चों के लिए भी था। सेहन के कोने में टूटी चारपाई खड़ी करके उस पर कुछ टूटी हुई लकड़ियां रखकर बावर्ची खाने का नाम दे दिया गया था। उसके साथ ही आसमा ने अपनी सिलाई मशीन कमरे के एक कोने में तख्त पोश पर सेट कर ली। मोहल्ले में जो भी औरत उसके मिलने और जाने वाली थी, सबको पैगाम भिजवा दिए कि आज से उजरत पर कपड़े सिया करेगी। घर किराए पर दे दिया गया था, बाकी वो उजरत करके कमा रही थी और यूं वो कम बख्त आसमा अब इस घर की कफील बन गई थी। अल्लाह अल्लाह करके नासिर के दफ्तर वालों ने उसे कुछ रकम दी तो कमरों के आगे एक छोटा सा बावर्ची खाना और बरामदा डाल लिया गया। बच्चे अगरचे अभी छोटे थे, मगर माँ की मेहनत को बहुत कदर की निगाह से देखते थे। घर का सौदा सल्फ अब शहबाज ही लेकर आता। सफाई सुथराई में भी सब बहन भाई उसकी मदद किया करते। काम से फारिग होते तो मशीन पर झुकी माँ के गिर्द घेरा डालकर बैठ जाते। वो भी सिलाई के दौरान उनसे बातें करती रहती और नासिर के अंदर तन्हाई का एहसास और भी बढ़ जाता। ये सब इकट्ठे हैं, एक दूसरे के बहुत करीब, और मैं इनसे बहुत दूर हूँ। ये वहम और कुछ खौफ उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगता तो घबरा कर वो वक्त बे वक्त आसमा को आवाजें देने लगता। वो बेचारी सारे काम छोड़ छाड़ कर उसकी आवाज पर लब्बैक कहती। तुम मेरे पास बैठो, जी घबरा रहा है मेरा, मगर उसके पास इतना वक्त ही कहाँ होता। वो नासिर से कहती,
बिस्तर से उठकर बैसाखियों के सहारे चलने की कोशिश करे। पहले पहल तो वो नहीं मानता था, मगर उसके दिमाग में उठने वाली खौफ और सोचें जब उसे बेइंतहा परेशान करने लगी, तो आसमा की बात मानकर कमरे से उठकर उस तख्त के पास आकर बैठने लगा जहाँ बच्चे अपनी माँ के गिर्द बैठे होते थे। दादी ये सब देखती तो अपने कमरे से नासिर को आवाजें देने लगती, मगर वो अनसुनी करके उस तख्त पोश के पास बैठा रहता। कई घंटे बीवी और बच्चों को खामोशी से बातें करते देखता रहता। अच्छे या बुरे हालात जैसे भी हों, आखिर गुजर ही जाते हैं, और बुरे हालात में अगर कोई मुखलिस साथ दे तो रास्ता आसान हो जाता है। आसमा के भाइयों ने भी उसका साथ दिया। उन्हीं के कहने पर वो घर में अचार डालने लगी, मसाले पीस कर उनके पैकेट बनाने लगी। खासा मुनाफा बख्श काम था। उसके अपने मोहल्ले की औरतें भी उसे ये सामान खरीद लेती। शहबाज ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो उसके मामू ने उसे एक स्टोर पर सेल्समैन की नौकरी दिलवा दी। ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, उसके मामू ने समझाया था। बस तुम कुछ माह यहाँ काम करो ताकि अपने कॉलेज की जरूरियात पूरी करने के लिए कुछ रकम इकट्ठी कर सको। मालिक अच्छा आदमी था। उसे जब बच्चे के हालात मालूम हुए, उसने कह दिया तुम कॉलेज में दाखिला लेने के बाद भी मेरे पास काम करते रहना, मैं तुम्हें शाम के शिफ्ट में रख लूंगा, तुम्हारी मदद भी किया करूंगा। घर के हालात बहुत अच्छे तो न थे, मगर हर फर्द कनात की दौलत से माला माल था। वो सब एक दूसरे के करीब और दुख दर्द के साथी थे। आज भी माँ के गिर्द घेरा डालकर बैठ जाते। छोटे बड़े दिन भर के तमाम वाकयात उसे सुनाते रहते। वो मुस्कुराए जाती, साथ साथ अपना काम करती जाती। माहौल में अरताश आज भी नासिर की आवाज पैदा करती। वो अब भी वक्त बे वक्त आसमां को आवाज दे डालता, और अब तो किसी न किसी दर्द तकलीफ की शिकायत भी करते रहते। हालांकि डॉक्टर्स कहते थे इस माजूरी के अलावा उन्हें कोई जिस्मानी आर्जा लाहक नहीं, मगर वो कभी पेट कभी सर दर्द की शिकायत करते रहते। अपने खाने पीने को उसकी वजह भी गर्दानते। नासिर को अपनी जात, अपनी शख्सियत, अपनी खुराक की बहुत परवाह थी। ये आसमां जानती थी और इस बात का वो बहुत ख्याल भी रखती थी, मगर नासिर की शख्सियत में आने वाली इस नई तब्दीली ने आसमां को परेशान करके रख दिया था। इतने सालों में उसे आदत ही नहीं रही थी कि नासिर उसकी भी परवाह करे, जो वो अब करने लगे थे। तन्हा, बीमार और कमजोर तो आसमां कई सालों से थी। यह अलग बात कि उसने अपनी तकलीफों का कभी किसी के सामने इजहार नहीं किया था। शायद खुद को वो भूल गई थी, मगर अब नासिर उसे कैसे याद रखने लगा था। जब तक वो खाना ना खाती, नासिर भी खाना सामने रख के बैठा रहता। घर में कोई फल आता तो उसका इसरार होता, पहले तुम खाओ, बाद में मैं और बच्चे खाएंगे। और बच्चों से भी अक्सर कहता, तुम लोग अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते, उसकी सेहत और आराम का ख्याल रखा करो। नासिर बहुत बदल गए थे। अब उन्हें आसमा के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। इन दिनों उसकी भतीजी मारिया एफएससी के पेपर्स देकर कुछ दिनों के लिए उनके पास रहने आई थी। वो हादिया की हम उम्र थी और हादिया से उसकी दोस्ती भी बहुत थी। जब से आसमा ने ऊपर 2 कमरे दिलवाए थे, हादिया के कहने पर मारिया अक्सर ही उनके पास उनके यहाँ रहने आ जाती थी। पहले उनके घर में किसी को रखने की गुंजाइश ही कहाँ थी। दादी के वफात के बाद उनका कमरा दोनों लड़कियों को मिल गया था और लड़के सर्दियां गर्मियां बरामदे में गुजारा करते थे। नए कमरे बने तो घर का हर फर्द बहुत खुश था। मारिया भी पहली बार कुछ दिन के लिए फुप्पो के यहाँ रहने आई थी। उसे ये सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, एक दूसरे का एहसास करने वाले, मेहनती। उसके अम्मी अब्बा भी अच्छे ताल्लुकात रखते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मगर नासिर फूफा की बात ही और थी। वो तो फूफो के दीवाने थे। उन्हें फूफो की बेहद फिक्र रहती। जब तक फूफो खाना ना खा लेती, वो भी खाना ना खाते। फूफो थक जाती तो वो इसरार करते, मुझे तेल की शीशी ला दो, तुम्हारे सर की मालिश कर देता हूँ। कभी जो फूफो खाने में सुस्ती करती तो वो भी खाना छोड़कर बैठ जाते। ऐसी मोहब्बत ना देखी ना सुनी। अब ये हाल है तो जवानी में तो बिल्कुल दीवाने होंगे, है ना फूफो? एक रोज मारिया ने आसमा से कहकर शरारत से पूछा था, और बड़े दिनों बाद आसमा की आंखों में आंसू आ गए। खामोश आंसू छुपाने के लिए वो मजीद मशीन पर झुक गई। बताइए ना फूफो। आसमा का दिल किया था उसे सब सच बता दे कि जब उसे एक महबूब मेहरबान हम सफर की ख्वाहिश थी तो वो कैसा कठोर था उसका शौहर। और फिर जब उसने अपने तमाम ख्वाब अपनी आंखों से नोच फेंके, उसके बच्चों ने अपनी मोहब्बत और एहसास की गर्मी से उसमें एक नई रूह फूंक दी, तो ये टूटा फूटा शख्स उसके लिए मेहरबान बन गया था। प्यारी बेटी, ये बातें अभी तुम्हें समझ नहीं आएंगी। तुम्हारे फूफा वाकई बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, मगर बात सिर्फ इतनी है,
ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. عورت تو ایک سایہ دار درخت کی طرح تمام عمر اپنے گھر پر چھاؤں کیے رکھنا چاہتی ہے. یہ شوہر ہی ہوتے ہیں جنہیں جوانی میں اس چھاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنی ماں کو ہی اپنی چھاؤں بنائے رکھتے ہیں تو ان کی ٹہنیوں کو بے دردی سے توڑ دیتے ہیں. کبھی کبھی تو جڑ سے اکھاڑ کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں. ہاں، بڑھاپے اور مجبوریوں میں جب یہ تھک جاتے ہیں تب یہی بیویاں ان کے لیے سایہ دار شجر ثابت ہوتی ہیں. اس سے آگے اسے کچھ بولا نہیں گیا تھا. اپنے کتنے ہی بے نام آنسو وہ اپنے اندر اتارتی چلی گئی تھی. کاش ناصر تمہیں میری یہ قدر جوانی میں ہوتی جب مجھے تمہاری ضرورت تھی.